Good morning, children. Today I am going to read out a chapter for you called The Scholar's Mother Tongue, and in this video I am just going to tell you how to pronounce each and every word. So just take care of the pronunciation because it's very important, especially in this chapter. So let us start. In this video I am just going to read this out for you. Okay, I'm just going to read this chapter for you, and in the next video I'll be explaining you this chapter. Okay, so let's start. The Scholar's Mother Tongue. A learned Pandit once visited the court of Akbar. This is not learned, this is learned. ठीक है, यहाँ पे learned नहीं लिखा हुआ, ये learned लिखा हुआ है, ये adjective है. ठीक है, learned का मतलब होता है विद्वान, पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा. ठीक है, उसे हम scholar भी बोलते हैं. ओके, तो ये learned है. A learned Pandit once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. ठीक है, तो आपको ध्यान से प्रोनाउंस करने हैं वर्ड्स. लर्नड, कोटियर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो यू हैव टू प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली लाइक दिस. A learned Pandit once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. Now, second paragraph, the Pandit could speak many languages fluently. How to pronounce this word? Fluently. Fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at. Okay, so now you have to pronounce each and every word very carefully. Okay, the Pandit, it's called Pandit, speak, languages, fluently, challenged, mother tongue. Okay, keep practicing these words so that you are able to pronounce them properly and effortlessly. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. When everyone failed, the challenge was taken up by Birbal. Okay, so you have to pronounce like this. Okay, then that night Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. तो क्या क्या words हैं ये? Quietly, asleep. He whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. Okay, क्या क्या words in you? Whispered, Pandits, tickled, feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. Okay, once again. That night Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. He whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. This is suddenly. Okay. Then Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. Okay. Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. You have to pronounce like this. Okay. The Pandit was surprised and accepted the truth. ठीक है, क्या क्या है? Surprised, accepted, truth. Surprised बोलते हैं इसको, surprised है ये. ठीक है, R is silent. Surprised, accepted, पहले वाले सी में क का साउंड आता है, नेक्स्ट वाले में स का. एक्सेप्टेड और ट्रूथ क्या होता है? ये ट्रूथ नहीं होता, ट्रूथ. The Pandit was surprised and accepted the truth. King Akbar then asked Birbal, okay, how did you find the truth? King Akbar then asked Birbal, how did you find the truth? Birbal answered, क्या word है? Answered. In times of difficulty, a person speaks only his mother tongue. Okay, in times of difficulty, the person speaks only his mother tongue. He told the king how he had gone to Pandit's room. He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. Okay, so again I'll read the last paragraph. Last paragraph once again. Birbal answered, in times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue. He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. This is how you have to read.
Good morning, children. In the last class, I told you how to recite each and every word of this chapter. We had a model reading session. Now, in this video, I am going to explain you this chapter. Okay, so listen very, very carefully. It is an interesting story. Okay, so let's start. The scholar's mother tongue. A learned Pandit once visited the court of Akbar. एक बार की बात है, एक लर्नर्ड का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, काफ़ी ज्ञान होता है, ज्ञानी, ठीक है, उसको बोलते हैं लर्नर्ड. ये लर्नड नहीं है वर्ड, ये लर्नर्ड है, ठीक है. ये एडजेक्टिव है क्योंकि विशेषण है जो पंडित के लिए इस्तेमाल किया गया है. कह रहे हैं कि एक विद्वान पंडित जो होता है ना, वो एक बार विजिट करता है, मतलब जाता है कहाँ, कोर्ट में, अकबर के. कोर्ट माने यहाँ पे दरबार, ठीक है. इधर कोर्ट का मतलब दरबार है. वैसे कोर्ट कचहरी को भी बोलते हैं, बट जो किंग का कोर्ट होता है उसका मतलब होता है किंग का दरबार. तो एक बहुत विद्वान पंडित जो होता है, ठीक है, वो अकबर के कोर्ट में जाता है, यानी दरबार में एक बार जाता है. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. और वो वहाँ जाकर राजा को, यानी अकबर को, ठीक है, बताता है. द किंग है ना, द किंग मतलब जिस किंग के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, यानी अकबर, ठीक है, उसके लिए द यूज़ किया. जो किंग है मतलब अकबर है उसको, और जो उसके कोर्टियर्स होते हैं दरबारी, जो दरबार में लोग काम करते हैं ना, उनको दरबारी कहते हैं. जो कोर्ट में काम करते हैं उन्हें कोर्टियर्स कहते हैं, ठीक है. वो उन्हें बताता है और राजा को बताता है कि उसको ना बहुत सारी भाषाओं में, मैनी मतलब होता है बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट मतलब अलग अलग भाषाओं में मास्टरी है, ठीक है, मास्टरी हासिल हुई है, निपुणता है उसको बहुत, मतलब वो एक्सपर्ट है अलग अलग लैंग्वेजेस में, ये कहता है वो जाके वहाँ पे कोर्ट में, ठीक है, किंग के. इतना समझ आ गया. फिर उसके बाद द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. और जो पंडित है वो बहुत सारी भाषाएं फ्लुएंटली बोल पाता है. फ्लुएंटली क्या होता है, जब हम कोई लगातार भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं बिना रुके, बिना थके, बिना ज़्यादा जोर डाले, ठीक है, एफर्टलेसली जब हम कोई लैंग्वेज अच्छे से स्पीक कर पाते हैं उसको बोलते हैं फ्लुएंट होना उस लैंग्वेज में, ठीक है. जैसे मैंने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब एफर्टलेसली, ज़्यादा उसमें मेरे को जोर नहीं लगाना पड़ता, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. प्रवीण होना, किसी भाषा में निपुण होना, ठीक है, उसको बोलते हैं वो फ्लुएंट है उस लैंग्वेज में, ठीक है. ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वॉज. अब ये जो पंडित है ये बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है, ठीक है, बोल सकता था, कुड है ना यहाँ पे, कैन होता तो बोल सकता है, कुड है तो मतलब बोल सकता था. ये बहुत सारी भाषाएं फ्लुएंटली बोल सकता था, ठीक है, बिना रुके, बिना थके, बहुत अच्छी तरह से, प्रवीण तरीके से, निपुण तरीके से बोल सकता था अलग अलग भाषाएं. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वो इतना प्रवीण था, इतना फ्लुएंट था, इतना अच्छे से बोलता था वो लैंग्वेज कि किसी को ये नहीं पता चलता था कि उसकी एक्चुअल जो मदर टंग है वो क्या है, उसकी जो मातृभाषा है वो क्या है, क्योंकि वो सारी लैंग्वेजेस इतने अच्छे से बोल पाता था, ठीक है. फिर क्या होता है, ये चैलेंज्ड एवरीबडी, ठीक है, वो सबको ना चैलेंज करता है कोर्ट में, एट द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट में जितने भी लोग होते हैं ना उनको वो चैलेंज करता है, ठीक है. ये चैलेंज एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग. उनको चैलेंज करता है कि अगर जान सको, बता सको तो मेरी मदर टंग का नाम बताओ, कौन सी मदर टंग है मेरी, कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, ठीक है. सबको चैलेंज करता है, दावा करता है कि बताओ भाई मेरी मातृभाषा कौन सी है, क्योंकि वो तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में फ्लुएंट है तो कोई बता नहीं पाता. व्हेन एवरीवन फेल्ड द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल. अब जब सब फेल हो जाते हैं ये गेस करने में कि उस स्कॉलर की मदर टंग क्या है, तो ये जो चैलेंज है ये कौन एक्सेप्ट करता है, बीरबल, ठीक है. बीरबल ये चैलेंज लेता है कि मैं पता करके बताऊंगा कि इस पंडित की मदर टंग या मातृभाषा कौन सी है, ठीक है. मदर टंग क्या होता है, आपकी मातृभाषा, जो आपको बचपन से ही लैंग्वेज आती है, ठीक है, जो आपके परिवार में, घर में, हर जगह बोली जाती है. जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, किसी की बंगाली है, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, बहुत सारी ये मातृभाषा है, मदर टंग है, ठीक है. दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वॉज असलीप. अब उस रात क्या होता है, बीरबल क्वाइटली मतलब चुपचाप, ठीक है. गो का पास्ट टेंस क्या होता है, वेंट, ठीक है. उस रात बीरबल चुपचाप पंडित के कमरे में जाता है, व्हेन ही वॉज अस्लीप, जब वो सो रहा होता है पंडित, ठीक है. क्या कर रहा होता है, सो रहा होता है. ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर. वो पंडित के जो कानों में कुछ खुसफुसाता है. विस्पर करने का मतलब क्या होता है, खुसफुसाना, बहुत धीमी आवाज़ में बोलना, जैसे बिल्कुल धीरे 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 ना खुसफुसाते हैं, ऐसे पंडित के कान में खुसफुसाता है कुछ, और उसको उसके कान को टिकल करता है. टिकल मतलब गुदगुदी करना, ठीक है, टिकलिंग करता है.
उसके कान को टिकल करता है, उसके कान को फेदर से, फेदर मतलब पंख होता है ना सॉफ्ट सा, ठीक है, पंख से उसके कान में गुदगुदी करता है, पंख से उसके कान में गुदगुदी करता है, ठीक है। द पंडित हाफ अवे क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। अब पंडित जो है वो भाई उठ जाता है, आधा उठ जाता है वो, ठीक है, आधा उठा हुआ होता है, पूरी तरह से अभी भी नहीं उठा, क्योंकि अगर आप सो रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब करे, ऐसे गुदगुदी करे, तो आपको गुस्सा आएगा ना, है ना, और गुस्सा भी आएगा तो आप थोड़ा सा ऐसे झुंझला जाओगे, ठीक है। तो पंडित जो है वो अभी आधा ही उठा होता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, ठीक है। यहाँ पे क्राइड आउट का मतलब, क्राई का मतलब रोना नहीं है, यहाँ पे क्राई आउट करने का मतलब क्या है, क्राइड आउट मतलब जोर से चिल्लाना, ठीक है, जोर से चिल्लाता है अचानक से, अचानक मतलब सडनली, ठीक है, और शाउट करता है वर्ड्स अपनी मदर टंग में, ठीक है, और उसे गुस्सा आता है और वो कुछ वर्ड्स निकालता है अपनी मातृभाषा में, ठीक है, मदर टंग में, ठीक है, समझ आ गया। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। अब देखो क्या होता है, ये पंडित जो होता है हाफ अवेक ही होता है, इसे मतलब एहसास नहीं होता, ठीक है, कि कौन है कौन नहीं, कि कौन आया है उसके रूम में, बस वो जो है ज़ोर से चिल्लाता है और कुछ बड़बड़ाता है अपनी मदर टंग में, ठीक है। तो बीरबल अगले दिन कोर्ट आता है और सबको बताता है कि जो पंडित है उसकी मदर टंग क्या है, उसकी मातृभाषा क्या, तेलुगु है, ठीक है। तेलुगु कहाँ बोली जाती है बच्चों, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु, तमिलनाडु की तमिल है, ठीक है, और केरला की मलयालम है, तो और कर्नाटकी की कन्नड़ा है, ठीक है, कर्नाटका की। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तेलुगु भी साउथ इंडियन लैंग्वेज है और आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। अब जो पंडित है वो सरप्राइज हो जाता है, एकदम हैरान हो जाता है। सरप्राइज होना मतलब क्या होता है, हैरान हो जाना, सरप्राइज हो जाता है, ठीक है, सरप्राइज होके वो एकदम हैरान हो जाता है ना, सरप्राइज हो जाता है, और वो एक्सेप्ट करता है ट्रूथ, वो सच को एक्सेप्ट करता है, कबूलता है, मानता है, ठीक है, एक्सेप्ट करना, कोई चीज़ मान लेना, ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है, हाँ यही सच है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। अब ये तो पक्का हो गया कि भाई पंडित की जो मदर टंग है वो तेलुगु है, बट अकबर के दिमाग में अभी भी ये क्वेश्चन है कि बीरबल को कैसे पता चला ये सच, ठीक है, ये ट्रूथ कैसे पता चला। तो वो उससे पूछता है, बीरबल से कि हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, कि बीरबल तुम्हें सच का कैसे पता लगा, कैसे पता लगाया तुमने सच का। बीरबल आंसर करता है, इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। कह रहे जब भी इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो पर्सन जो होता है, जो इंसान होता है, हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बोलता है, ठीक है। अभी पंडित एकदम डर गया था कि कौन है भाई, या कौन गुदी गुदी कर रहा है, या कौन कौन मुझे परेशान कर रहा है एकदम रात को, ठीक है, तो इसलिए उसके मुंह से मदर टंग निकली। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। और वो बताता है कैसे वो पंडित के रूम में रात को गया सच का पता लगाने के लिए। अडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। और ये जो आपको दी गई है ना कहानी, ये अकबर और बीरबल की स्टोरीज जो है उनसे ली गई है, ठीक है, उनसे अडेप्ट की गई, उनसे ली गई है। तो बेसिकली बच्चों ये यही बता रहे हैं कि जब हम पे कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हम हमेशा अपनी मदर टंग में ही बोलते हैं, अपनी मदर टंग ही याद आती है हमें सबसे पहले, और कोई भाषा याद नहीं आती जब मुसीबत आती है तो, ठीक है, ओके। अब जैसे चोट लग जाती है, आ माँ ऐसे ही निकलता है ना, आउच आ, ऐसे सब निकलता है ना, ठीक है, और कोई आपको इरिटेट करेगा तो ज़्यादातर आपके मुंह से मदर टंग ही निकलेगी। ये पहले की कहानी है, अब आज के टाइम में ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट ये पहले की स्टोरी है। तो बेसिकली इससे हमें पता चला कि वो जो स्कॉलर था, विद्वान था, उसकी मदर टंग क्या है और मदर टंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में हमें मदर टंग ही याद आती है। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा सबको। Good morning children. Now it's time to do question answers of this chapter called The Scholar's Mother Tongue. So first is reading is fun. Question number 1. Who came to Akbar's court? अकबर के कोर्ट में, अकबर के दरबार में कौन आया था? A learned पंडित came to the Akbar's court. एक विद्वान पंडित जो था वो अकबर के दरबार में आया। What did he claim to know? वो उसने क्या दावा किया, वह क्या जानता था? He claimed to know many languages. ठीक है, उसने दावा किया कि वह बहुत सारी भाषाएं जानता है। How did he challenge everybody? उसने सबको कैसे चैलेंज किया? He challenged everybody to find out his mother tongue. ठीक है, उसने सबको चैलेंज किया कि अगर कोई बता सकता है तो ये बताए कि उसकी मातृभाषा यानी मदर टंग क्या है। ठीक है, तो ये मॉडल आंसर है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आंसर्स।
बेटा अपनी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आप हिंदी में लिखें, अपनी लैंग्वेज मतलब अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं आप, ठीक है, जिस जैसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने वर्ड्स में। देन व्हाट इज़ योर मदर टंग, अपनी मदर टंग लिखनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्लेस वेयर यू आर लिविंग और वट एवर इज़ योर मदर टंग वेयर यू बिलोंग टू। जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, सो हैव रिटन हिंदी इज़ माई मदर टंग। ओके, टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग, अपनी मदर टंग में कोई जोक आपको बनाना है, ठीक है। इसमें मैं आपको मतलब ये खुद ही करनी है एक्टिविटी, ठीक है, आपको अपनी मदर टंग में कोई जोक सुनाना है। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश, टेल योर फ्रेंड्स। आपको कोई और लैंग्वेज आती है और आपको कोई जोक आता है इंग्लिश में, अगर आता है तो अपने फ्रेंड्स को सुनाएं, ठीक है। एक ये मॉडल जोक है, आप चाहे तो कोई भी अपनी तरफ से आप जो है वो जोक सुना सकते हैं इन इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 121 में, यू हैव टू स्पीक दीज वर्ड्स अलाउड, थोड़ा ज़ोर से पढ़ना है इनको। आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किम, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको प्रोनाउंस करना है। फिर लर्नड है आपका, क्रिएटेड, वेटेड, ठीक है, लर्नड है, सॉरी ये लर्नड, ठीक है, लर्नड, क्रिएटेड, वेटेड। सो आपको ये सारे वर्ड्स जो है ज़ोर से बोलने हैं। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 122 पर, ठीक है। राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी, वो सारे वर्ड्स लिखो जिनसे पता चले आप हैप्पी हो, जैसे याहू, yippee, कॉश, हुर्रा, ठीक है, ये वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि आप हैप्पी हो। फिर उसके बाद आपने टिक करना है राइट आंसर, ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर जो है राइट होगा। ओके, आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, कि आप कहीं कहीं विजिट करें, मतलब यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, आप कहीं जो है शॉर्ट टाइम पे, शॉर्ट टाइम के लिए गए हो, उसको बोलते विजिटेड, ठीक है। तो मतलब कि आप शॉर्ट टाइम के लिए कहीं गए हो, फाइन, उसको बोलते हैं विजिटेड। यू ऑलवेज लिव देयर नहीं होगा, यू वर बॉर्न देयर भी नहीं होगा। टू इमिटेट समवन मीन्स टू कॉपी समवन, किसी को इमिटेट करना मतलब उस किसी की नकल करना, कॉपी करना। टीज नहीं होगा, टीज मतलब होता है किसी को तंग करना या चिढ़ाना, ठीक है, वो नहीं होगा। मेक समवन एंग्री भी नहीं होता, इरिटेट करने का मतलब, सॉरी इमिटेट करने का मतलब इमिटेट, ठीक है, इमिटेट का मतलब होता है टू कॉपी, इरिटेट का मतलब होता है तंग करना। आगे आपका क्रॉसवर्ड है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने पहले कराऊंगी मैं ये आपको, ठीक है। लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन उड़ीसा अक्रॉस, देखो आप, ठीक है, उसमें दिया हुआ है फर्स्ट उड़ीसा में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे बोलते हैं उड़िया, एंड इट इज़ स्पोकन इन कर्नाटका में कन्नड़ा, द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज में आसमीज़, ठीक है, असामीज़ या एसमीज़, एसमीज़ बोलते हैं बेटा, उसको एसमीज़ प्रोनाउंस करेंगे। देन लैंग्वेज इज़ यूज, जो दिस लैंग्वेज इज़ यूज इन आंध्र प्रदेश इज़ तेलुगु, देन यू कैन हेयर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र इज़ मराठी, ठीक है, मराठी जो है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज आपका है, कौन सी जगह पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सी स्टेट में, ठीक है, उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटका में कन्नड़ा, ठीक है, असम में एसमीज़, आंध्रा में तेलुगु और महाराष्ट्र में मराठी। देन डाउन चलेंगे, पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज इज़ मलयालम, ठीक है, यहाँ पे जो लैंग्वेज आएगी वो आएगी मलयालम, बिकॉज केरलाइट्स दे स्पीक मलयालम, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज कौन सी है हमारी, हिंदी। द लैंग्वेज ऑफ गोवन पीपल इज़ कोंकणी, गोवा में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे बोलते हैं कोंकणी, ठीक है, कोंकणी और कोंकणी। देन दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु, आंसर इज तमिल, तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में। देन इट इज़ वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर उर्दू, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है और जगहों पर भी बोली जाती है कौन सी लैंग्वेज, उर्दू, ठीक है। तो आपने करना है, इसमें लैंग्वेजेस के बारे में पूछा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की लैंग्वेजेस के बारे में पूछा है आपसे। का ये है क्वेश्चन जिसमें आपने कॉलम्स फिल करने, क्वाइट का हो जाएगा क्वाइटली, फ्लुएंट का फ्लुएंटली, एंग्री का एंग्रीली, सैड का सैडली, ठीक है, फियर्स का फियर्सली, जेंटल का जेंटली, ठीक है। तो ये आपने कॉलम जो है ये फिल करनी है अच्छे से, ठीक है, एल वाई लगाना है बस, सब में एडवर्ब बन जाएगा वो, ठीक है, इट विल बिकम एन एडवर्ब। देन आपको मैच करनी है किसके साथ क्या मैच होगा, किंग के साथ कोर्टियर्स मैच होंगे, टीचर के साथ स्टूडेंट्स होंगे, डॉक्टर के साथ पेशेंट्स होंगे, बस ड्राइवर के साथ पैसेंजर्स होंगे, लॉयर के साथ क्लाइंट्स होंगे, मदर के साथ चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना था, रिलेटेड चीज़ों को मैच करना था। किंग के दरबारी होते हैं, टीचर के स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर के पेशेंट्स होते हैं, बस ड्राइवर के पैसेंजर्स होते हैं, लॉयर के क्लाइंट्स होते हैं और मदर के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको एक गेम खेलनी है, ठीक है,
और ए और एन ऐड करना है, ठीक है। बास्केट से चीज़ें उठा के, जैसे अ रग होगा, अ पिलो, अ बेडशीट, एन अलार्म क्लॉक, अ वॉल क्लॉक, अ रिस्ट वॉच, एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ बनाना, एन आइसक्रीम, अ बो, एन एरो, ठीक है। आपको याद रखना है जो वोवल्स होते हैं, वोवल के साउंड्स होते हैं, उनके साथ एन आता है, बाकी सबके साथ अ आता है। ओके, इतना सबको सब आपसे पूछ रहा है बीरबल को कैसे पता चला कि पंडित की मदर टंग क्या है, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि कैसे पता चला बीरबल को कि पंडित की मदर टंग क्या है। बीरबल एंटर्ड क्वाइटली इन द पंडित्स रूम। बीरबल चुपचाप से क्वाइटली, एकदम शांति से पंडित के रूम में एंटर किया। ही देन विस्पर एंड टिकल्ड आएगा ये, ठीक है, CKLED, टिकल्ड इन हिज ईयर, और फिर उसने उसके कानों में गुदगुदी की। विद अ फेदर भी लिख सकते हैं आप, पंख से, ठीक है। पंडित शाउटेड इन हिज मदर टंग, पंडित ने अपनी मदर टंग में शाउट किया, चिल्लाया। इन दिस वे बीरबल फाइंड आउट पंडित्स मदर टंग, इस तरह से बीरबल को पता चल गया कि पंडित की मदर टंग क्या है। सो दीज वर दी मेन क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा भी हैं जो वो हम एक्टिविटीज़ की फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है, क्लास में।